Hello students, we are starting today chapter number 14. Name of the chapter is biomolecules. See, in this chapter, first of all, we will study about the carbohydrates, then proteins, okay, means amino acids, then after vitamins, and last is the nucleic acids, that is DNA and RNA and their structures. So first part is a carbohydrate. Carbohydrates उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. First is monosaccharides, then disaccharides, tri, tetra, penta and polysaccharides. Now today we will go point to point, and today's topic is structures of glucose based on the chemical reactions. We know that the molecular formula of glucose, it is C6H12O6. Again, the molecular formula of glucose is C6H12 and O6. See, this is the structure of glucose, molecular formula of glucose, and now we will derive the structure of glucose. See, so glucose contains 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygens, and now how these atoms are attached with each other and which type of functional groups are present, we will study about it. So before that, first of all, we are taking the empirical formula. Empirical formula of glucose is CH2O. The ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. And now here n equals 6. That's why whole formula is multiplied by 6. So that based on the molecular formula, molecular mass, it is 180. And here one part has the 30. So that 6 times then total is 180, and this is the molecular formula of glucose. Now glucose gives many chemical reactions, and on the basis of the structure of product we will derive the structure of glucose. मतलब आपको ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस करनी है, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है उससे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स कैसे सेट होते हैं, 6 ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होंगे, ईच कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो वो हम डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. सो इन अ ग्लूकोज देयर इज अ CHO ग्रुप, दैट इज अ aldehyde group. Then 4 times CHOH, and the last one is CH2OH. CHO, CHOH 4 times, and then CH2OH. Next, अब हम ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस लेते हैं और उससे जो प्रोडक्ट मिलती है इससे ग्लूकोज में कैसे कार्बन कैसे सेट होंगे वो हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हमने पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. CHO, CHOH 4 times, and then CH2OH. This is the structure of glucose. As here we can see that here 6 carbon atoms in a linear position. Means when glucose reacts with HI, glucose is heated with hydrogen iodide. So here reaction takes place, and we are getting the product CH3, CH2 4 times, and then CH3. So this is normal hexane. Again, this is normal hexane. Again, glucose reacts with HI, reduction reaction takes place, and we are getting
normal hexane. Okay, normal hexane. And here, see, if we see the 6 carbon atoms which are in a linear chain, and then here glucose contains many isomers like normal hexane, then 2-methyl pentane, then 3-methyl pentane, then 2,2-dimethyl, 2,3-dimethyl butane, and then finally 2,2-dimethyl butane. So 6 carbon atoms can be attached, can be joined by टोटल 5 वेज। तो उसमें से यहां पे आपको मिला नॉर्मल हेक्सेन, तो इससे ये प्रूव होता है कि यहां पे 6 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में ही होंगे, यहां पे मतलब ग्लूकोज में। अगेन ग्लूकोज से हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, इससे ये पता चलता है कि ऐसी प्रोडक्ट कब मिलेगी, दैट मींस ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स अरेंज्ड है वो एक भी कार्बन एटम एज अ ब्रांच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन से आपको क्या मिला, 6 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में ही मिले। तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एटम लीनियर चेन में ही होंगे। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है, चलो कंक्लूजन लिखेंगे हम। ग्लूकोज कंटेन्स 6 carbon atoms in a linear chain. Okay, next one is second reaction। चलो ग्लूकोज की सेम वे, ग्लूकोज उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम। अगेन CHO, then CHOH 4 times and then CH2OH। चलो अब ध्यान से सेकंड रिएक्शन देखो, इसके टोटल 2 रिएक्शंस हम ले रहे हैं। फर्स्ट वन, when glucose reacts with हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर है NH2OH। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर है NH2OH। सेकेंड कंपाउंड इज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, फर्स्ट इज NH2OH, सेकेंड इज HCN। अब चलो बैकग्राउंड में इसकी रिएक्शंस देखते हैं कि कौन इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा। तो ध्यान से देखो, कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज C double bond O can react with these reagents hydroxyl amine and hydrogen cyanide। और रिएक्शन में क्या होगा, तो देखो चलो CHO है तो उसमें CHO में एक हाइड्रोजन आएगा और बाकी के जो भी फंक्शनल कार्बन एटम्स, लेकिन इतना पार्ट तो एल्डिहाइड में होता ही है। मेनली यहाँ पे है C double bond O, इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप्स। और प्रोडक्ट क्या मिलती है, चलो अब देखते हैं। तो CHO उसमें CH एज इट इज, जो डबल बॉन्ड दिया है ना, तो ये H2 जो दिया है आपको, वो H2O के साथ कंबाइन होके बनाएगा H2O, एंड NOH is attached here, and remaining part is as it is। remaining part means CHOH 4 times and then CH2OH। so this part is as it is, and we are getting the product named glucose monoxide। ओके, ग्लूकोज मोनोऑक्साइड। इससे ये पता चलता है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला। सिमिलरली HCN, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, चलो देखते हैं हम। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी कि यहां पे सिंपल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जो यहां पे डबल बॉन्ड आपको दिया था, तो उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो कार्बन पॉजिटिव बनेगा तो Cn माइनस और बाकी का। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिली, चलो देखते हैं अभी। तो प्रोडक्ट मिली CHO की जगह पे यहां पे होगा CH
उसके साथ एक CN और दूसरा OH, CH उसके साथ CN और दूसरा OH, अगेन OH और CN दोनों अटैच्ड होंगे। रिमेनिंग पार्ट नीचे हम देखेंगे तो यहां पे होगा CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH, और इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और इन दोनों प्रोडक्ट से ये पता चलता है, इनका कंक्लूजन है, ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। तो इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो अगेन हियर two reactions are given. In both of the reaction we are getting the products which explains that in the main glucose substance CO group, that is C double bond O group must be present. Next, चलो अब ध्यान से देखना है, यहां पे दो कंक्लूजन हम साथ में ले रहे हैं। ओके चलो, नंबर 1, अगर हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर, ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और जो CHO दिया है ना, दिस CHO is converted into COOH. ओके, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे यह पता चलता है कि CHO ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। ग्लूकोज कंटेन्स CHO ग्रुप। Okay, glucose contains CHO group. So glucose is converted into gluconic acid. Next, second reaction. So when glucose is oxidized, दोनों oxidation reaction ही है यहाँ पे, but here we are taking strong oxidizing agent, and strong oxidizing agent is concentrated HNO3, and here CHO is converted into COOH, and CHOH also is converted, CH2OH is also converted into COOH. ओके, तो यहां पे दो आपको COOH मिलेंगे। ओके, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। तो इससे यह पता चलता है कि यहां पे एक तो CHO कंफर्म है ही, बट अनदर CH2OH is also converted into COOH. That means याद करो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपको पता होगा कि CH2OH की जगह पे जब COOH आता है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कभी चेंज नहीं होते, वही रहते हैं, डिक्रीज नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर कीटोन होता तो यहाँ पे कार्बन एटम्स डिक्रीज हो जाते, तो यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि सैक्रिक एसिड में कार्बन एटम्स 6 के 6 ही है और CH2OH is converted into COOH। और एक थी, अगर ग्लूकोनिक एसिड का हमने ऑक्सीडेशन किया विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें सैक्रिक एसिड मिलता है। मींस कंफर्म्ड, यहां पे इसका कंक्लूजन ये है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो ग्लूकोज
contains at least one primary alcoholic group. Again, it contains at least one primary alcoholic group. Okay, primary alcoholic group उसमें present है. नेक्स्ट रिएक्शन. अब जो ग्लूकोज की रिएक्शन आती है वो है एसिटाइलेशन. और असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज. उससे पहले एक बेसिक थिंग देख लेते हैं कि ROH जो भी होता है, दैट इज अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो एसिडिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो CH3 C double bond O O C double bond O and CH3. Here this bond is broken. So and here this bond is broken. H will be plus, O will be minus, and here O will be minus and C will be plus. So with RO, this positive part COCH3 is attached. With RO, COCH3 group is attached, and we are getting acetate derivative. इसको हम बोलेंगे acetate derivative. ओके, तो यहां पे देखो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज. अगर हमने इसका एसिटाइलेशन किया तो प्रोडक्ट कैसे मिलती है देखते हैं. तो चलो अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज CHO, then CHOH 4 times, then again CH2OH. Okay, ग्लूकोज. अगर हमने इसका एसिटाइलेशन किया तो हमें पता है, देख लो यहां पे टोटल 4 and 1, total 5 OH groups are present here. So that whenever reaction is occurred, we are getting 5 times acetylation in CHO. देख लो यहाँ पे RO as it is और उसके साथ COCH3. मतलब H के जगह पे COCH3 आएगा. तो यहाँ पे भी नीचे भी CH2O, then COCH3, and the name of the product is pentacetate glucose. पेंटाएसिटेट. तो इससे ये पता चलता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मींस ग्लूकोज में ऑलरेडी 5, पेंटा मींस 5, ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH means alcoholic groups. Okay, 5 OH groups. तो इससे ये पता चलता है. तो अब स्टूडेंट्स पहले से अगर हम देखें यहाँ पे देख लो, तो जितने भी यहाँ पे हमने रिएक्शन ली आज, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उसमें पहले आया HI की रिएक्शन, जिससे ये पता चला 6 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में है. नेक्स्ट फिर ये पता चला कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, NH2H हाइड्रोक्सिलेमाइन एंड HCl के साथ रिएक्शन की. तब थर्ड वन ब्रोमीन वाटर के साथ जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलती है ग्लूकोनिक एसिड, और नीचे कंसंट्रेटेड HNO3 से हमें मिलता है सैक्करिक एसिड. और ये जो सैक्करिक एसिड है तो इससे ये पता चलता है कि उसमें एटलीस्ट 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो प्रेजेंट है ही. ओके, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. देन आफ्टर पेंटाएसिटेट से ये पता चलता है कि उसमें 5 OH ग्रुप्स है. तो स्टूडेंट्स अब फाइनल इसका स्ट्रक्चर देख लो, 6 कार्बन एटम्स इन अ linear chain. Next
There is a CHO group and CHO group must be at last, either first or last. यहाँ पे CHO group तो क्योंकि ब्रांच में तो है ही नहीं. Next, at least one primary alcoholic present. Primary alcoholic students वो भी लास्ट में ही होगा क्योंकि मिडल में तो क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी के जो बीच में 4 बचे तो उसमें ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बचे, कुछ हाइड्रोजन बचे और कार्बन हमने लिख दिए हैं. तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हर एक जगह पे CH OH CH OH CH OH CH OH. अब अगर सेम कार्बन के ऊपर अगर हमने 2 OH लिख दिए तो ऐसा कोई कंपाउंड आज तक पॉसिबल है ही नहीं. मींस एक ही कार्बन के ऊपर अगर हमने 2 OH साथ में लिख दिए, H ऊपर लिख दिया, फिर भी तो वो तो सही हुआ. लेकिन ऑन single carbon atom 2 OH group containing compounds are not stable. ओके तो 2 OH यहाँ पे तो होंगे ही नहीं. तो इसका नाम है ग्लूकोज और ये है इसका स्ट्रक्चर. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रूव हुआ. ओके स्टूडेंट्स, पुराने वीडियोस को लाइक करिए, ओके, और चैनल सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.